Bismillahirrahmanirrahim. As this is the first week and it's the last day of the first week, and I already told you in the start of the session that the first week I have denoted this week general to the general English, the foundational English. We have discussed all the Mm, points that could be required to us in attempting the IELTS mm, exam. But just to mm, your basics, I discuss some of the points. And Alhamdulillah, now mm, you have practiced many things and you have got some idea. And the thing that you have forgotten, I know that you all know. Alhamdulillah, Amir is also a teacher. Varda is also a competent teacher, lecturer in she is serving as a lecturer in the different institutes. So you all are very competent. Miss Talat, she's a teacher, has been a teacher as well. So, but I just revised those things so that all the things you could recall them. So that when in the next week we are discussing some advanced level things related to IELTS, the basic thing would not be your problem. So the last topic is remaining that I want to tackle and discuss. That is about the active and passive voice. Very briefly, I'll just summarize all the information and then I'll share the notes. mm, You can repeat. mm. And I'll, in the weekend, this weekend, Friday, Saturday, Sunday, I will share many exercises related to the tenses and active voice and passive voice. And I request you all people to attempt all those exercises, please. Sure, sure, sure. So now I'm going to share my screen. My screen is visible to everyone. Yes. Okay, I have designed this English grammar book. So this is a chapter. Now we talk about the active and passive voice. Active voice is related is the same like the tenses. Uh, Mm-hmm. Once I taught a girl tenses. After completion of the tenses, I was talking about the passive voice. So she said that, ma'am, we didn't discuss about the active voice. And I was just laughing that there is no difference between active voice or tenses. Basically, the case is that tenses refers to the time. मीन जब हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं बेसिकली हम ये लर्न कर रहे होते हैं हाउ टू से समथिंग हाउ टू मेंशन एन इवेंट इन द टाइम according to the time. For example, this action happened, so how I will say that this action happened in the past or it will happen in the future or it is happening now. So we discuss tenses to know how we can Okay. एक minute. Mm-hmm. So how we can mention our event of the time. And Mm-hmm. activize and passivize means how we can say the same thing, how we can say the same sentence into the different voice. Voice means the आवाज, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि एक ही बात को हम Mm-hmm. डिफरेंटली कैसे कह सकते हैं. डिफरेंटली मीन्स कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करके कैसे कह सकते हैं. इसमें ये होता है कि हम Mm-hmm. हमारा एम्फसाइज का फर्क होता है, हम जोर किस पे दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आस्क मी हु एट द एप्पल. आपसे पूछेंगे एप्पल किसने खाया है. मैंने एक एप्पल रखा था इन द फ्रिज. हु एट द एप्पल. आई विल से आई ईट एन एप्पल या आई एट एन एप्पल. मैंने सेब खाया है. क्योंकि वो सेब मैंने खाया, मैंने आपको बता दिया कि आई एट एन एप्पल. लेकिन अगर आप पूछे आपको ये कंसर्न हो सेब किसने खाए हैं, आप पूछेंगे कि एप्पल स्टिल एप्पल्स आर इन द फ्रिज और नॉट, तो मैं आपको बताऊंगी नो, एप्पल्स वर इटन, एप्पल खा लिए गए हैं. अब उसमें ये कंसर्न नहीं किसने खाए हैं किसने नहीं, वो बस ये पूछेंगे एप्पल्स इस वक्त हैं या नहीं या वो खा लिए गए हैं. मैं कहूंगी एप्पल्स वर इटन, एप्पल्स वर ऑलरेडी इटन, वो किसी ने पहले ही खा लिए आप नहीं ले आए जाके. तो हमने फोकस देखना होता है कि क्वेश्चन में वो कंसर्न है आइदर अबाउट द सब्जेक्ट और अबाउट द ऑब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आंसर दैट क्वेश्चन. इसलिए हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखते हैं. हमारी वॉइस जो होगी वो किस तरह होगी कि उसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होगा या पैसिव होगा. बस ये एक्टिव Mm-hmm. में हम ये लर्न करते हैं. ये वही टेंसेस है यू हैव लर्न. जस्ट नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन मेक आवर सब्जेक्ट एक्टिव, हाउ वी कैन मेक इट पैसिव वॉइस. मतलब पैसिव उसकी वॉइस को पैसिव कैसे कर देंगे. अच्छा, Okay. एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को, आमिर को तो पता है, आप लोगों से शेयर करूंगी. मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ. छोटी सी बात बताना जरूरी है, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. डू यू नो अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट.
Doer. Okay, Varda, can you please express your thought about subject? Please. Varda, why are you silent today? Any problem? Okay, she doesn't want to speak. However, let me tell you. You are very right, Miss Talat. Subject is the doer, you said. So if I say, let me write a sentence. I am a teacher. What is the subject in this sentence? I. So you say that subject is a doer. So the word I, it is doing something. क्या ये जो subject है क्या ये कुछ कर रहा है It is explaining the state. या इसमें जैसे आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई की बीइंग क्या है, हु इज आई इज अ टीचर, मतलब आई एम अ टीचर अपने बारे में बता रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी डेफिनेशन में थोड़ी कमी है। सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज अ डूअर, सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता। हम सब्जेक्ट के बारे में यूं समझेंगे कि सब्जेक्ट जो है वर्ब, बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस about which something is said. Amir, are you listening to me? Amir. Yes, I am listening. Okay. You can ask question if you have any confusion. Okay, ma'am. Subject is a part of a sentence about which something is said. कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है जुमले में, सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो हमेशा वो चाहे डूअर भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बहुत सारे रोल्स हैं। इट कुड बी द डूअर, इट कुड बी द थीम, इट कुड बी द प्लेस, इट कुड बी द लोकेशन, इट कुड बी द एनीथिंग। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। वो जरूरी नहीं कि हमें, जैसे कि इट्स रेनिंग, इसमें इट जो है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इट इज, इट इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ वेदर के बारे में बात हो रही है। तो जिसके भी बारे में बात की जाए उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वर्ब। क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव में हमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बहुत खेलना पड़ता है। तो जब हम ये क्लियर होगा ना तो फिर हम इजीली उनको हैंडल कर पाते हैं, वरना फिर हमसे मिस्टेक हो जाती है। जनरली तो हम जब उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की नजर से, फिर हम कहीं ना कहीं ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस में बोलते हुए, लिखते हुए, ड्यूरिंग द अटेम्प्टिंग द एसेज और डिफरेंट रिपोर्टिंग एंड समरी टास्क, वहां पे हम मिस्टेक्स कर देते हैं। अच्छा, वर्ब मुझे बताएं, वर्ब क्या होता है? Action. आमिर, आपको मैंने बताया हुआ है। Action of state being. ओके, थैंक यू बेटा। वर्दा, व्हाई आर यू साइलेंट? No, ma'am, I'm available. ओके, यू शुड पार्टिसिपेट ना, ताकि मैं पूछे आप क्या सोचती हैं, उस हिसाब से भी इंसान ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है। अच्छा, सो verb, आपने, you are very right that verb are actions, there is no doubt, you are very right. मुझे बस मैं स्पीड से एक छोटी सी बात बताती हूँ, टाइम वैसे कम है। वर्ब जो है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड। ग्रीक का एक वर्ड है वर्बम, उससे डिराइव हुआ है। अब वो अब वो कौन सा वर्ड है? दैट इज वर्बम। वर्बम का क्या मतलब होता है आमिर? वर्बम मीन्स वर्ड। वर्बम का क्या मतलब है? Word में यस। और word का मतलब है कि जी, लफ्ज। हम अब जैसे कि सेंटेंस को बनाने के लिए जो वर्ड्स हम यस, गुड, आपको कुछ कुछ याद है, लेकिन आपको मजीद रिवीजन की जरूरत है। ओके, सो आमिर, अपना कैमरा ऑफ ना करें प्लीज, आप कैमरा ऑन रहना चाहिए। फीमेल्स को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप तो रखे ना। ओके। अच्छा, तो वर्ब बेसिकली जो है, अब ग्रामरियन ने बहुत सारे वर्ड से, मिलियन ऑफ वर्ड से, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया। ये कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है। कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन द यूज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। अलग अलग हम आपको बताते हैं, इसको यहाँ यूज करना है, इसको यहाँ करना है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। उन्होंने क्या किया, सारे वर्ड को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया,
ताकि आराम से बता सके नाउन को यहाँ यूज करते हैं, वर्ब को इस तरह यूज करना है, एडजेक्टिव कैसे यूज करना है। When they divided all the words into the different categories, they named it. उन्होंने उन कैटेगरीज को नाम दिया। अब नाम उन्होंने एक कैटेगरी को नाउन दे दिया, एक कैटेगरी को उन्होंने एडजेक्टिव दे दिया, एक कैटेगरी थी जिसको उन्होंने वर्ब का नाम दिया। वर्ब का मतलब अगर हम ओरिजिनली देखें तो इसका मतलब लफ्ज होता है, हालांकि लफ्ज तो बाकी भी थे, बट उन्होंने इस एक खास कैटेगरी को लफ्ज क्यों कहा? क्या एडजेक्टिव वर्ड्स नहीं होते, प्रोनाउन सारे वर्ड्स हैं, बट ग्रामर। वर्ड्स जी जी क्या वर्ड होते हैं, बट जो वर्ब बेसिकली जो वर्ड वर्ब के लिए यूज हुआ है वो जी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वो एक्टिव वर्ब भी हो सकता है। तो मतलब जो सेंटेंस को एक्चुअली एक यस शेप दे रहा होता है वो वर्ब होता है। वर्ता ने काफी रिलेट मतलब काफी हद तक सही आंसर दिए। उनका ये कहना है कि सारे ही लफ्ज हैं, प्रोनाउन भी वर्ड है, एडजेक्टिव सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो ये वाली कैटेगरी है जिसको हम वर्ब्स कहते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बगैर सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जैसे वर्ता ने कहा कि वो शेप देते हैं कि मेजर रोल ही वर्ब्स का है। You can make sentence without noun, pronoun, adjective, adverb, without each and everything, but you can't make a sentence without a verb. यानी वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं बनता, ये आज आप तय कर लें अच्छे तरीके से। There is no single sentence in the English language that exists without a verb. तो यानी कि वो कहते हैं कि वर्ब की सेंटेंस में वही हैसियत है जो एक लफ्ज की होती है। As we can't make a sentence without a word, in the same fashion we can't make a sentence without a verb. ये बात हमें क्लियर हो गई है। सो अगेन मैं यही सेंटेंस लिख देती हूँ, थोड़ा चेंज कर देती हूँ। आई एम अ गर्ल। जैसे कि हमने कहा कि वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं। तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम कर रहा है इसमें? नहीं ना। तो इसका मतलब अगेन हमारी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कमी है। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब में, ये नहीं करी नहीं होते, बट सिर्फ वर्ब का रोल जस्ट एक्शन नहीं है, और बहुत सारे रोल्स हैं जिनको हमने स्किप कर दिया। बिल्कुल इस तरह से सब्जेक्ट डूअर भी होता है। सब्जेक्ट के तकरीबन 15 रोल हैं जो सब्जेक्ट प्ले कर सकता है, लेकिन हमें बस डूअर तक याद है। वो ये कि हमें शायद हमने पढ़ा भी इस तरह ही था बचपन में। तो अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या क्या हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटाने लगी हूँ। वर्ब जो है इसके दो रोल्स हैं। एक, ये एक्शन वर्ब होते हैं, यानी कि ये एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस, और उसके अलावा दे आल्सो एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब एक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, दे आल्सो परफॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक्शंस फर्दर दो तरह के होंगे। एक एक्शन होता है जिसमें मोशन होती है, हरकत होती है। फॉर एग्जांपल ईट, टू ड्रिंक, टू स्माइल। आप ये है कि इसमें जब आप ये एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है, देखने वालों को नजर आता है कि ये आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। टू स्लीप, टू वॉक, टू रन, इन सब में एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जबकि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि टू फील, आई एम फीलिंग फीवर, लेकिन मैं हरकत नहीं कर रही। जैसे कि आमिर जो है इस वक्त टू ही इज ऑब्जर्विंग समथिंग, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहे हैं, स्टिल बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। टू एक्सपीरियंस, ये भी एक वर्ब है। तो बहुत सा, टू लव, मोहब्बत करने के लिए यू डोंट नीड टू मूव। पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं, लेकिन वैसे बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता। आप ऐसे आराम से सुकून से बैठ के दिल देना किसी से मोहब्बत कर सकते हैं। टू हेट मीन्स हर वो वर्ब जो माइंड से और हार्ट से परफॉर्म हो, आपकी बॉडी इन्वॉल्व ना हो, वो भी एक्शन वर्ब्स ही कहलवाते हैं। हम इनको नेम डिफरेंटली देते हैं। किसी को ये बात ना समझ आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जो वर्ब्स हैं, No, no, it is clear. Clear, clear. जिनके लिए मैंने ये यूज किया कि इसमें मोशन है, तो उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। वैसे मैं बता रही हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन, वैसे जरूरी नहीं था कि आपको नाम नेम्स का पता हो, जस्ट इन्फॉर्मेशन होना ही काफी था। और इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। क्योंकि ये हम जब टेंसेस करते हैं, आमिर को तो मैंने बहुत डिटेल में टेंसेस करवाए हैं, अभी जैसे मैं आगे भी आप लोगों को भी थोड़ा सा बताऊंगी, तो उसमें हम स्टेटिव वर्ब्स के सारे, यानी कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको हम
यूजुअली जो है वो इनका कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते हैं। जैसे थिंक को हम आई एम थिंकिंग नहीं कहेंगे, आई थिंक। तो इनको हम वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं स्टेटिव वर्ब जिनको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखते, वो वेग लगते हैं, सही नहीं लगते। आई एम थिंकिंग आप कहें आई थिंक। आई ऑब्जर्व, आई एम ऑब्जर्विंग नहीं, आई ऑब्जर्व। आई एम लविंग नहीं, आई लव। आई एम मिसिंग नहीं, आई मिस। इनको आप कॉन्टिन्यूस के बजाय सिंपल में लिखा करें। अच्छा, आगे हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, जिनके लिए हम नेम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब। वो वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये वैसे मैं नेम बता रही हूँ। यस, शाबाश। बी की जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारी स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि इज, आर, एम, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब बी की। उसके अलावा इसकी सेकंड फॉर्म वाज, वर, इसकी थर्ड फॉर्म बीइंग। उसके अलावा और भी वर्ड हैं जैसे कि अपीयर, लुक, एंड देयर मेनी मोर, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आई शी लुक्स ब्यूटीफुल। आपने देखना है कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा कि वो ब्यूटीफुल लगती है, बल्कि वो है कौन, वो ब्यूटीफुल है, प्यारी है, उसके होने की हालत को बताया जा रहा है। इट मीन्स कि ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, जो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज यू कैन शेयर, यू कैन आस्क क्वेश्चन। Easy. ओके, No, it is clear. ओके, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई दिस शेयरिंग। अच्छा, एक सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया है, वर्ब भी क्लियर हो गया। ठीक है, मैं इसको करती हूँ, हम 12 पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। आपने बस ये याद रखना है कि वर्ब, अच्छा ये भी बात मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। आई एम अ टीचर में एम जो है वो एक मेन वर्ब है। इसको आप हम्म हेल्पिंग वर्ब ना कहिएगा कि इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया करती हूँ कि जैसे जब मेरी मदर अलाइव थी, वो घर में मेन वर्ब थी, एंड आई यूज्ड टू हेल्प हर, मैं उनकी मदद करती थी, सो आई यूज्ड टू बी अ हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, शी हैज पास्ड अवे, तो अब मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम स्टिल हेल्पिंग। अब मैं हेल्पिंग नहीं बल्कि मैं मेन वर्ब बन गई, क्योंकि अब घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, तो मैं मेन वर्ब हो गई हूँ। तो इस सेंटेंस में हम इसको हेल्पिंग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अगर ये हेल्पिंग है तो वर्ब कौन सा जिसकी मदद कर रहा है। कोई चीज होगी तो उसकी मदद होगी ना, वो वर्ब ही नहीं है यहाँ पे कोई और, तो हेल्प किसी करे, खुद ही मेन वर्ब है। और इसका नाम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ये तब होता है अगर हम लिखते हैं आई एम टीचिंग, फिर हम कहते हैं कि ये वर्ब है और ये एम उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। Yes. थैंक यू। नाउ वी कम, हाउ, ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट। So again I open that file and I reshare my screen. अब आपको इजीली ये समझ आ जाएंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा हमने उसको लेके चले जाना एंड पे। जैसे कि द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट। अब प्रोफेसर इसमें सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। हमने क्या करना है, प्रोफेसर जो है सब्जेक्ट है, हमने उसको हटा देना है, हमने उसको ले जाना है एंड पर, और स्टूडेंट्स को हमने शुरू में ले आना है, और फिर वर्ब की हम कुछ तब्दीलियां करेंगे। वर्ब की तब्दीलियों के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले आपने बस ये देखना है कि इसको ना मैं बेहतर है कि मैं उधर खोलूं ताकि मैं इस पे राइट भी कर सकूं। एक सेकंड, ये ना दूसरी उसमें ओपन हुई हुई है, जस्ट लेट मी ओपन इट हियर। इस बाकी स्टूडेंट्स के हो गए और ये 10th कंप्लीट। टेंसेस, जी। यस, कल मैंने करवा दिए थे।
मेरा भी इसमें रहता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो बेटा करवाना ही नहीं है मुझे आपको, वो मैं ना उसका जिक्र करूंगी लेकिन बहुत एंड पर जाकर, क्योंकि उसका यूज नहीं है। ये वो बुक है जो मैंने लिखी थी जब मेरी मदर बीमार हुआ करती थी, उनके साथ मुझे रात को जागना होता था। दैट्स इन दोज डेज आई रोट दिस बुक, और ये काम आ जा रही है। However, आप ये देखें, चलिए अब हम यहाँ पे राइटिंग में साथ करेंगे। आपके सामने ये एक मैं आपको प्रिंसिपल बता देती हूँ। हमें एक्टिव वॉइस में ना हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता था। हमने जब भी एक्टिवली बात करनी है तो हमने सब्जेक्ट को शुरू में रखना है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। हमें बस पता है कि सब्जेक्ट जब भी एक्टिव करना है और तब करना है जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा जाए। जब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि हु कंस्ट्रक्ट द रोड, तो आप ये ना बताएं कि लेबर्स कंस्ट्रक्ट द रोड। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि रोड्स के बारे में, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, आप कहें यस रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा चुकी हैं, बात खत्म। तो हमें अपनी लाइफ में बहुत कम मतलब यूजुअली इतना एक्टिव वॉइस नहीं यूज करना पड़ता जितना पैसिव वॉइस, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो काम किसने किया, कौन कर रहा है, हमें बस काम से कंसर्न होता है। वैसे भी सेल्फिश हम सारे, तो हमें काम से गर्ज होता है, क्या जिसने मर्जी हमारा काम हो जाए काफी है, हमें क्या किसने किया है। तो इसलिए हम हमेशा जो काम हुआ है, जिस पे काम हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे, यानी कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। याद रखिएगा पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लाजमी यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। डायरेक्ट वर्ब आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए मैं यहाँ पे एच वी लिखने लगनी है। एच वी मीन हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि टेंसेस मजीद इजी हो गए हैं। आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म जब हम यूज करेंगे तो हमें पता होगा ओके इट्स अ पैसिव वॉइस, या हेल्पिंग वर्ब हम लगा के बताएंगे डिफरेंट कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसीलिए हमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना पड़ता है एस्पेक्ट को शो करने के लिए। जैसे कि हम आगे देखते हैं। मैम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं होता क्या? सॉरी मैंने यहाँ पे गुड क्वेश्चन होता है, या मैंने गलती से लिख दिया दोबारा। इसको मुझे रीराइट करना होगा। यहाँ मैं इसको रीराइट कर देती, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपने बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और सेंटेंस में मैम बाय। अगर आप हर सेंटेंस में ये मूव नहीं कर रहा है इस फाइल के ऊपर, हाउएवर मैंने लिख दिया, आप ठीक कर लीजिएगा, ये मुझसे करेक्ट नहीं हो रहा। तो आपने हर सेंटेंस में लिखना है, लेकिन अगर आपको जरूरत है सब्जेक्ट लिखने की, वैसे तो आप ना भी सब्जेक्ट लिखें तब भी गुजारा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने हर बात में उसका जिक्र करना है सब्जेक्ट का। और नेचुरली जो है हम सब्जेक्ट का जिक्र करते भी नहीं, जैसे कि हम सिंपल कह देते हैं मरियम मरियम नवाज was elected, बैक ऑन करो। मरियम नवाज was elected as a, बंद करो। हम आगे बता देंगे जो भी वो इलेक्ट हुई हैं। मैं पॉलिटिशियंस को डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे उन्हें किसने इलेक्ट किया किसने नहीं किया हम उसका जिक्र नहीं करते, हम कहते हैं बस मरियम नवाज वाज इलेक्टेड, या हम कह सकते हैं ही वाज मर्डर्ड। अब कत्ल किसका हुआ हमें तो पता ही नहीं है, उसका मर्डर किसने किया है, तो हम बाय लगा के कैसे लिख सकते हैं हु मर्डर्ड हिम, वो तो हमें पता हो तो हम लिखेंगे ना। हम जो लिखते हैं ही वाज मर्डर्ड, ही वाज असैसिनेटेड, किसी सियासी बंदे का कत्ल हो तो हम कहते हैं ही वाज असैसिनेटेड, कि उसका कत्ल कर दिया गया, बात खत्म।
तो पैसिव वॉइस हम यूजुअली तब करते हैं जब हमें आइडिया नहीं होता सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट कौन है, किसने वो काम परफॉर्म किया है। यू आर वेरी राइट वर्दा। सो हमने लेकिन अगर आपको आइडिया है और आप उसको पैसिव रखना चाह रहे हैं तो फिर आप बाय लगा के लिख दीजिएगा, बाय अली। और ये रिपोर्ट राइटिंग में जो आपका टास्क 1 होता है उसमें यूजुअली पैसिव वॉइस यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि हम बता रहे होते हैं कि ये काम ऐसे हो, किसने किया हो हमें आइडिया नहीं होता, हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, जो काम हो रहा है बस हमें पता होता है ये हो रहा है, करने वाले का हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हम रिपोर्ट राइटिंग में ज्यादातर पैसिव वॉइस ही यूज करते हैं। और एथिकली भी हमें पैसिव वॉइस ही यूज करना चाहिए, हमें नॉमिनेट नहीं करना चाहिए नाम की यूज पर्सन ने किया। अच्छा, अब आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। टॉम क्लीन्स द हाउस, यानी कि हमने सब्जेक्ट लिखा एक्टिव वॉइस में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और हाउस ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे हमने इज क्लीन्ड लिखा, क्यों? क्योंकि क्लीन थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस की वजह से। और इज हमने क्यों लगाया आमिर? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने याद रखा था, तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है बेसिकली बी की। तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई प्रेजेंट को शो करने के लिए और थर्ड फॉर्म लगा दिया वो पैसिव वॉइस को शो करने के लिए। सारा इज राइटिंग द लेटर। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, एक दफा आप लोगों ने जिनको टेंसेस जिन्होंने कल वाली मेरी फाइल देखी है तो इस बात को समझ सकेंगे कि प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, जैसे कि इज लगाया, कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हमने पैसिव वॉइस की जैसे थर्ड फॉर्म भी लगानी है, तीन चीजें होंगी हमारे पास, प्रेजेंट की जैसे फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस की जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर पैसिव वॉइस की वजह से थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो हमने राइट से रिटर्न कर दिया तो पैसिव बन गया, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी तो बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, तीन चीजें बनानी है। राइट की थर्ड फॉर्म लगा के हमने शो कर दिया कि ये हमारा टेंस सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में। गुड। अब हम आपको पता है ना बी से हेल्प लेते हैं, तो बी की हमने पहले फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसकी शक्ल जो हमने लिखी है वो इस की सूरत में लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म शो करिए कि प्रेजेंट है। फिर हमने बी को लिखा और बी के साथ आईएनजी लगा दिया, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस हमने बनाया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से क्या बनता है? कॉन्टिन्यूस। तो पहले हमने प्रेजेंट बनाया, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर हमने पैसिव वॉइस यानी कि थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरह सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पास्ट की जैसे हमने सॉरी थर्ड फॉर्म द वर्ब, हाँ इधर सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। अब हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस की जैसे हमने रिपेयर थर्ड फॉर्म लिखी और वाज हमने सेकंड फॉर्म लिखी पास्ट को शो करने के लिए, पास्ट पैसिव, द कार वाज रिपेयर्ड। ये मैं आपसे वैसे शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट की जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म, जिन्होंने कल वाली वीडियो सुनी होगी ना उनको बात आराम से समझ आ रही होगी। और परफेक्ट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की जैसे हैज फर्स्ट फॉर्म लगाई, परफेक्ट की जैसे थर्ड फॉर्म लगाई। बी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मेरे पास एक ही वर्ब है ना विजिट, अब विजिट के साथ मैं थर्ड फॉर्म दो दो दफा तो नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे दो दफा थर्ड फॉर्म लगानी है, एक परफेक्ट को शो करने के लिए और एक पैसिव वॉइस को शो करने के लिए, तो इसलिए मैंने बी की हेल्प ली है, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, परफेक्ट बनाया, फिर विजिट के साथ दोबारा थर्ड फॉर्म लगाई पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इसलिए हो गया ये हैज बीन विजिटेड। इसको छोड़ें परफेक्ट कंटिन्यूस को, नीचे पास्ट परफेक्ट पे आ जाए। पास्ट परफेक्ट में हैड रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म लगाई हैज हैव की, सेकंड फॉर्म पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, फिर परफेक्ट की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। इसी तरह हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई पास्ट को शो करने के लिए, परफेक्ट की जैसे थर्ड फॉर्म लगाई बी की, और फिर पैसिव वॉइस हमने की जैसे रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगाई, तो ये बन गया हैड बीन रिपेयर्ड। अच्छा, इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर दो तरह से बनते हैं, एक विल के साथ और एक इज गोइंग टू, यानी कि इज आर एम, बी का मतलब होता है इज आर एम, गोइंग टू के साथ बनते हैं। तो विल फिनिश, विल फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है फ्यूचर हमेशा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है। आमिर कैसे बनता है फ्यूचर?
विल लगाया से सिंपल। खाली विल लगाने से नहीं बनता फ्यूचर। विल के साथ हमेशा जब तक फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी फ्यूचर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वर्दा आप ये देखें कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, विल फिनिश, तो ये फ्यूचर बन गया। अब यहाँ पे हमने फ्यूचर पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसलिए विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई बी, पहले फ्यूचर बनाया, फिर पैसिव वॉइस के लिए हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्लियर? तो इसलिए विल बी फिनिश्ड, इसलिए हम यहाँ पे बी लगाते हैं। हाँ जी, हमने बीन यूज किया तो बी हमने इसलिए यूज किया ना, फ्यूचर के लिए हमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। इसके साथ तो हमने थर्ड फॉर्म लगाई हुई थी, ये तो फर्स्ट फॉर्म थी ही नहीं। अब हमें एक फर्स्ट फॉर्म भी तो चाहिए ना, ताकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के फ्यूचर बनाया अपना पूरा। ये हमने फ्यूचर बनाया, ये हमने पैसिवाइज बना दिया, ये हमने पैसिवाइज बना दिया। ठीक है ना? अच्छा, इज गोइंग टू मेक को हम क्या कर देंगे, इज गोइंग टू बी मेड हो जाता है, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी बल्कि ना एक बड़ा सा अपने रजिस्टर पे लिख लें, इंग्लिश लैंग्वेज में जहां भी टू आएगा उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी होती है, यानी टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में जैसे हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हम क्या करेंगे, टू के बाद पहले बी लगा देंगे, बी एज अ फर्स्ट फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म, ताकि दोनों बातें, दोनों का दिल रखा जाए, किसी का दिल ना टूटे। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, एक रूल ये है, एक रूल कहता है कि टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएं। पैसिव वॉइस का रूल हमें कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाएं। तो दोनों का दिल रखने के लिए हम क्या करते हैं, बी को का इस्तेमाल करते हैं, बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बना लेते हैं, तो टू बी मेड, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूजुअली यूज नहीं होता है, इसलिए इसको आप स्किप कर दें। वैसे इसमें मैंने सारे ही इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ उन पे वर्क कर सकते हैं जो कॉमनली हमारे यूज होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने, हैज हैव की, तो ये बन गया फ्यूचर, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये परफेक्ट बन गया, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ बनाना है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, तीन चीजें बनानी है। पहले विल प्लस फर्स्ट फॉर्म से फ्यूचर बनाया, बी की थर्ड फॉर्म लगा के परफेक्ट बनाया, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिवाइज बनाया, फ्यूचर परफेक्ट पैसिवाइज। ये छोड़ दें और बस आप नीचे आ जाएं, और आपको मजीद कोई जरूरत नहीं है। इनको इम्पेरेटिव को देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपने देखना हुआ। डू इट एट वंस, डू फर्स्ट फॉर्म है ना, पैसिवाइज बनाने के लिए हम लेट लगा देते हैं, और आपको पता है लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम बी लिख के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब भी हमने कोई भी ऐसा रूल है ना जो आपको पता हो कि इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के बाद, जितने मॉडल वर्ब है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब के बाद वर्ब की हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कभी अगर आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ जाए पैसिव वॉइस की जैसे, तो आप बी लगा के लगाएं, माइट बी, कुड बी, कैन बी। बात समझ आ रही है? जितने भी दुनिया में मॉडल वर्ब है उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने पैसिवाइज बनाना है तो फिर टू के बाद बी लगा के पैसिवाइज बनाएंगे, तो ताकि एज अ फर्स्ट फॉर्म आप बी को यूज करेंगे। वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मेक, पैसिवाइज बनाना था तो बी लगा के बनाए, वुड बी मेड। जितने भी आप मॉडल वर्ब्स हैं, आप मजीद नीचे जाके इसके मॉडल वर्ब्स देखें ना, यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है पे, पैसिवाइज बनाना था तो बी फर्स्ट फॉर्म लगा के आप पैसिवाइज बनाएंगे। मे के बाद गॉड ब्लेस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी लगा के पैसिवाइज बनाया गया। तो आपने हमेशा जब भी पैसिवाइज बनाना है, बनाएं, आप थर्ड फॉर्म लगाएं, लेकिन देखें कि रूल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बी लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और फिर आप पैसिवाइज लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? Yes. मीटिंग